السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو اسلامک اکیڈمی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے اس سبق میں بھابی جان افسانے کے تعلق سے جو سوالات و جوابات ہیں جو عام طور سے امتحان میں آتے رہتے ہیں، اور وہ 8 سوال ہیں جو عام طور سے امتحان میں آتے رہتے ہیں، تو میں نے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو دھیان سے سمجھیں گے اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آنے والے امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو سکے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک اردو اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بھابی جان، اس تعلق سے سب سے پہلا سوال ہے کہ رقیہ بھابی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا تھا؟ رقیہ بھابی کہ جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا اس کا نام کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام اختر تھا۔ جواب کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جواب: رقیہ بھابی کے دیور کا نام اختر تھا۔ اختر ایک مثبت کردار ہے جس کے ذریعے رقیہ بھابی کا کردار نمایاں اور کہانی ترقی پذیر ہوتی ہے۔ اختر کے کردار نے دراصل رقیہ بھابی کے کردار میں انسانی پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ تو رقیہ بھابی کے دیور کا نام کیا تھا؟ اختر تھا، اور اختر یہ وہ کردار ہے کہ جو اصل رقیہ بھابی کے کردار ہے اس کردار کو سامنے لانے والے اختر ہیں جو ان کو دیور ہیں، اور اختر کے ذریعے ہی رقیہ بھابی کا کردار عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے آیا جو انسانی پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ آئیے اب دوسرا سوال پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ رقیہ بھابی کے شوہر کو سیاست سے دلچسپی تھی اور ان کے اوپر سیاسی مقدمے ہوتے تھے۔ ایک مقدمے میں 2 سال کی سزا ہو گئی، سزا کے لیے جیل چلے گئے، واپس آئے جب تک کہ کسی دوسرے مقدمے میں پھر 3 سال کے لیے سزا ہو گئی۔ اسی طرح ان کے زندگی کے شب و روز اکثر جیل میں گزرنا پڑتا تھا۔ تو چونکہ سیاست سے آپ کو دلچسپی تھی اور وہ اس معاملے میں آگے رہتے تھے، اس لیے آپ کو جیل جانا پڑتا تھا۔ آئیے جواب کو پڑھ لیتے ہیں۔ جواب ہے، رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار اس لیے جیل جانا پڑتا تھا کہ انہیں سیاست سے کافی دلچسپی تھی۔ اس وقت تحریک آزادی زوروں پر چل رہی تھی۔ رقیہ بھابی کے شوہر پر کئی سیاسی مقدمے چل رہے تھے۔ کسی مقدمہ میں 2 سال کی سزا ہو گئی۔ جیل سے چلے گئے اور 2 سالوں کے بعد جب رہائی ملی تو معلوم ہوا کہ کسی دوسرے مقدمہ میں انہیں 3 سال کی سزا ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ آئیے اب تیسرا سوال پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ تیسرا سوال، رقیہ بھابی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی؟ رقیہ بھابی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھیں اور کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ رقیہ بھابی شمی نام کی ایک لڑکی تھی جو ان کے کالج میں پڑھتی تھی، اور وہ غریب طالبہ تھی۔ اس کے ماں باپ کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں تھے کہ اپنی بچی کو پڑھا سکے،
तो इसलिए रुकैया भाभी खुद अपने खर्चे से शिम्मी नाम की लड़की को पढ़ाती थी और इसी तरह रुकैया भाभी दूसरी बच्चियों का भी, गरीबों की भी मदद किया करती थी। आइए जवाब को पढ़ लेते हैं। जवाब, रुकैया भाभी शिम्मी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, इसलिए कि शिम्मी बहुत गरीब लड़की थी, उससे पढ़ने का ज़ौक़ बहुत ज़्यादा था, लेकिन गुर्बत की वजह से वालिदैन उसकी तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसलिए रुकैया भाभी जो कॉलेज में लेक्चरर थी, उन्होंने शिम्मी के तालीम का खर्च अपने ज़िम्मे ले लिया। इस तरह वो दूसरे हाजतमंदों की मदद भी किया करती थी। आइए अब चौथा सवाल की तरफ चलते हैं और इसको पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। चौथा सवाल है, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करना पड़ा था, क्यों बेचना पड़ा था? शिम्मी नाम की लड़की जिसको रुकैया भाभी मदद करती थी, उसके भाई का एमए का फॉर्म जमा करना था और उसके भाई के पास भी रुपया पैसा नहीं था। तो और जब बहन ने अपने भाई के लिए रुकैया भाभी से कहा तो रुकैया भाभी के पास भी उस वक्त रुपया पैसा नहीं था कि उसके भाई की मदद कर सके। तो इसलिए उन्होंने अपनी सोने की चूड़ियों को फरोख्त करके शिम्मी के भाई का फीस अदा किया ताकि वो अपनी तालीमी सिलसिला को जारी और बरकरार रख सके। आइए अब इस जवाब को पढ़ लेते हैं। जवाब है, रुकैया भाभी एक गरीब तालिबा शिम्मी की तालीमी मदद करती थी। एक दिन शिम्मी रोती हुई उनके पास आई और बताया कि उसके भाई का एमए का फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख कल है, मगर फीस नहीं है। रुकैया भाभी ने बगैर कुछ सोचे अपनी सोने की चूड़ियां बेचकर फीस अदा कर दी ताकि शिम्मी के भाई का तालीमी सिलसिला जारी रह सके। आइए अब पांचवा सवाल की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक पूरा करने के लिए वो कौन सा काम करती थी? तो रुकैया भाभी फुर्सत के वक्त में खत लिखने का काम करती थी और खत लिखने वाले लोगों का पाबंदी से जवाब देती थी, उनको लिखने पढ़ने का मशवरा देती थी, तलबा के ज़ाती मामलात में भी दिलचस्पी लेती और उनका हर तरह का ख्याल रखती। आइए इस जवाब को पढ़ लेते हैं। जवाब है, रुकैया भाभी को खत लिखने का शौक़ था और वो फुर्सत के वक्त लोगों के खतूत के जवाब पाबंदी से देती थी। वो लिखने पढ़ने के मशवरे भी देती थी। कॉलेज में पढ़ाने के साथ साथ वो तलबा के ज़ाती हालात का भी ख्याल रखती थी और उनकी मुमकिना मदद करती थी। अब आइए तवील सवालात में हम चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तवील सवालात में सबसे पहला जो सवाल है वो है सवाल, रुकैया भाभी का सरापा कम अज़ कम 10 जुमलों में तहरीर करें। रुकैया भाभी का सरापा, ये सरापा जो है, तो सबसे पहले इस सवाल को आप समझें कि रुकैया भाभी का सरापा कम अज़ कम 10 जुमलों में तहरीर करें। ये सरापा क्या होता है, सरापा का क्या मतलब है? तो सरापा का मतलब होता है सर ता पा, यानी सर से पांव तक। मतलब ये है कि आपकी जो पूरी ज़िंदगी है रुकैया भाभी की, उस ताल्लुक़ से पूरी ज़िंदगी आपने किस तरह गुजारा, उनके हालात ज़िंदगी पर आप रोशनी डालें। और आप जानते हैं कि पढ़ चुके हैं, रुकैया भाभी बड़ी सब्र करने वाली, कुर्बानी देने वाली औरत हैं। इनके शौहर जब जेल चले गए तो तमाम घर की जिम्मेदारी खुद जो है
अदा करना, देवर की खातिरदारी करना, बच्चों को वक्त पर स्कूल छोड़ना। इसी तरह घर के खर्च को चलाने के लिए स्कूल में, कॉलेज में लेक्चरर बन गई, ट्यूशन भी पढ़ाती थी, और जो कुछ माली जो कुछ माल वगैरह आपके पास आता था आपकी कमाई से, तो उसी में घर भी चलाती थी, गरीबों की मदद भी किया करती थी। इस तरह आपने गम और मुश्किलों में किस तरह खुश रहा जाए, इस पहलू को आपने उजागर किया है। आइए अब इस जवाब को हम पढ़ लेते हैं। जवाब: रुकैया भाभी एक साबिर, हमदर्द और कुर्बानी देने वाली औरत के रूप में सामने आती हैं। वो घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती हैं, माली मुश्किलात झेलती हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानती। उनके शौहर सियासत की वजह से अक्सर जेल में रहते हैं, मगर रुकैया भाभी ने हमेशा हौसले और खुशी के साथ जिंदगी गुजारी। वो दूसरों की मदद करना अपना फर्ज समझती हैं। उनकी ज़िंदगी एक शम्मा की मानिंद है जो खुद जल कर दूसरों को रोशनी देती है। ये कहानी हमें हौसला, इसार और मुश्किल वक्त में सब्र का दर्स देती है, पैगाम देती है। अब आइए सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं और सवाल नंबर 7 पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। सवाल नंबर 7 है, रुकैया भाभी के किरदार को एक मिसाली किरदार बनाकर सुहेल अजीमाबादी ने कारी को हौसला देने का काम किया है। इस ख्याल से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? तो सुहेल अजीमाबादी ने क़ारीन को, पढ़ने वाले को, रुकैया भाभी की ज़िंदगी को, उनके किरदार को एक मिसाली किरदार बना करके पेश किया है, जिससे कारी को हौसला मिलता है। इससे आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? जवाब है कि हम जो है इससे मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करते हैं कि किस तरह रुकैया भाभी ने मुश्किल वक्तों में अपने लिए जीने की राह निकाल लिया और गमों के दरमियान किस तरह खुश रहना जो है हमें बतला दिया। तो ये उनकी ज़िंदगी है और इससे पूरे तौर पर इत्तेफाक किया जा सकता है। और हर मुश्किल और परेशानियों में ज़िंदगी गुजारने वाला इनकी ज़िंदगी को देख करके अपने लिए आसानी की और खुशी की राह तलाश कर सकता है। आइए जवाब पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। जवाब है, मैं इस ख्याल से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। सुहेल अजीमाबादी ने रुकैया भाभी के किरदार को मोहब्बत, इसार, सब्र और खुलूस का नमूना बनाकर पेश किया है। रुकैया भाभी ने अपनी ज़ाती जज्बात और खुशियों को कुर्बान करके ख़ानदान और गरीबों की भलाई को मुक़द्दम रखा। उनकी इसार, सब्र और दुश्वारियों और परेशानियों के दरमियान भी अपने लिए जीने की राह निकाल लेना कारी को ज़िंदगी के मसाइल में हौसले का पैगाम देते हैं। उनका किरदार वाकई एक मिसाली किरदार है जो दूसरों के लिए मशअले राह है। आइए अब 8वें सवाल की तरफ चलते हैं और इसको पढ़ते हैं और ये समझते हैं। और ये आखिरी सवाल है, अफसाना भाभी के किस किरदार ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और क्यों? तो जो अफसाना आपने पढ़ा है भाभी जान, तो उसमें कई किरदार है, उसमें से कौन सी किसके किरदार ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है और क्यों किया है, इसका जवाब जो है मांगा गया है। तो जवाब है कि इसमें रुकैया भाभी के किरदार ने सबसे ज़्यादा हमको मुतासिर किया है। और क्योंकि रुकैया भाभी की ज़िंदगी के वो हालात हैं कि किस तरह मुश्किल हालात में इंसान अपने लिए जीने की राह निकाल सकता है और कैसे गमों के दरमियान खुश रह सकता है, कैसे घर की जिम्मेदारियों को और अपने घर के खर्चों को कैसे इंतज़ाम कर सकता है, कैसे चला सकता है। तो ये रुकैया भाभी की वो नमूना है, वो हालात हैं कि जिनकी वजह से उनका किरदार सबसे ज़्यादा
हमें अच्छा लगा। आइए अब इसका जवाब पढ़ते हैं। मुझे अफसाने में रुकैया भाभी का किरदार सबसे ज़्यादा मुतअस्सिर कुन लगा। उन्होंने मोहब्बत, इसार और क़ुरबानी की आला मिसाल कायम की। घर की तमाम जिम्मेदारियों को खुश उसलूबी से निभाते हुए उन्होंने अपनी ज़ात की नफ़ी करके दूसरों की खुशियों को तरजीह दी। उनका सब्र, खुलूस और हमदर्दी कारी के दिल में गहरा असर छोड़ते हैं, जो अमली ज़िंदगी के लिए बेहतरीन सबक फराहम करते हैं। अजीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आपसे गुजारिश है कि इसको फिर सुने और इसको याद करने की कोशिश करें, दिल में बैठाएं। और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो चीज़ें समझ में ना आई हों आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाअल्लाह उसका जवाब फौरी तौर पर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।